Welcome back, guys. This is Akash. Today we will discuss the chapter number 3, Deep Water, that is written by William Orville Douglas. आज हम इसका सेंट्रल आइडिया देखेंगे हिंदी में। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में जान लेते हैं। विलियम ऑरविल डगलस was born in USA in 1898 and death हुई इनकी 1980 में। Douglas was a leading advocate of individual rights. He was a judge at the Supreme Court of USA, retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest service justice in the history of court. The following excerpt is taken from The Man of Mountain by William Douglas. डगलस व्यक्तित्व अधिकारों के प्रमुख पैरोकार थे। वह संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश थे। सन 1975 में 36 साल के कार्यकाल के साथ सेवानिवृत्त हुए और अदालत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले न्यायाधीश बने। निम्नलिखित अंश विलियम ओ डगलस द्वारा पुरुषों और पहाड़ों से लिया गया है। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। डीप वाटर समरी। The story has been taken from the author's autobiography of Men and Mountains. In the piece, he tells about fear of water and how the conquered by its determination and willpower. As a child, when he was 3 or 4 years old, he would go to the beach in California With his father, he would get scared by the might of huge waves which swept over him and instilled fear in his subconscious mind. A few years later, in his eagerness to learn swimming, he joined a swimming pool where an accident further increased his terror. He was pushed into pool by another boy and experienced death closely. Many years after that incident, he stayed away from water, but the desire to go to fishing and swimming in nature was strong enough to motivate him to overcome his fear. He learned swimming with the help of an instructor who ensured that William knew swimming well enough to be able to swim in huge lakes and waterfalls also. Still, when he would swim, the fear from his childhood experience embedded in his subconscious mind would grip him over and over again. He wanted to conquer that fear. He faced it scarcely, thinking that now he knew how to swim, what harm could it do him? अब इसका हिंदी मतलब समझते हैं। गहरे पानी का सारांश। कहानी की लेखक आत्मकथा मैन ऑफ मेन एंड माउंट से ली गई है। इसके टुकड़े में वह पानी जो अपने डर के बारे में बताता है और कहता है कि उसे दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से इस पर विजय प्राप्त की है। बचपन में जब 4 साल के थे तो वे अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर जाते थे। वह उन विशाल लहरों की ताकत से डर जाएगा जो उसके ऊपर बह रही थी और इसने उनके अवचेतन मन से भय पैदा कर दिया। कुछ साल बाद तैराकी सीखने के लिए उनकी उत्सुकता में वह शामिल हो गए एक स्विमिंग पूल जहां एक घटना ने उसके आतंक को और बढ़ा दिया। उसे एक और लड़के ने पूल में ढकेल दिया और मौत का बारीकी से अनुभव किया। उस घटना से कई साल बाद वह पानी से दूर रहे लेकिन प्रकृति में मछली पकड़ने और तैर तैरने जाने की इच्छा इतना मजबूत की कि वह अपने डर पर काबू पाने के लिए प्रेरित कर सके। उन्होंने एक प्रशिक्षक प्रशिक्षक की मदद से तैराकी सीखनी जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि विलियम इतनी अच्छी तरह तैरना जानता था कि विशाल झीलों और झरनों से भी तैरने में समर्थ हो। फिर भी वह जब तैरता था तो बचपन के अनुभवों से डर लगता था। उसके अवचेतन मन को समाया हुआ उसे बार-बार पुनः जकड़ लेता था। वह उस डर पर विजय पाना चाहता था। वह उसे व्यंग्यात्मक ढंग से इसका सामना किया यह सोचकर किया हुआ क्योंकि
वह तैरना जानता था, इससे उसे क्या नुकसान हो सकता था। He challenged he challenged his fear in the face of it, and finally it would vanish. It was a baseless fear instilled in his subconscious mind. The experience was valuable for him. He had experienced terror and that he overcome it. Finally conquered it. William realized that that is peaceful and it is fear of death that is terrorizing his will to live. Life grew intensely as he had overcome his fear and started living fearlessly. उन्होंने इसके सामने अपने डर को चुनौती दी और अंत में यह गायब हो गया। यह उनके अवचेतन मन ने एक निराधार भय पैदा कर दिया था। यह अनुभव के लिए उन्हें अमूल्य था। उसने आतंक और मौत का अनुभव किया था। उसने इस पर विजय प्राप्त की और अंत में इस विजय प्राप्त की। विलियम ने महसूस किया कि मृत्यु शांतिपूर्ण है और यह मृत्यु का भय, जो आतंकित करता है, जीवन जीने की उसकी इच्छा तीव्रता से बढ़ी क्योंकि उसने अपने डर पर काबू कर लिया था और निडर होकर जीने लगा था। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।